So most fields of psychology talk about abnormality of the brain, diseases, what can be cured and healed. But there are only a very few subspecies of psychology that talk about the true potential of an individual. With me is Laiba, who is doing her master's in clinical psychology and is also practicing psychologist. Could you briefly introduce yourself, please? Yeah, sure. First of all, hi. I hope everyone listening to us is doing well, and it is great to be here today and on this podcast series. My name is Laiba Sadaf. I belong to Sahiwal, Punjab, Pakistan, and I am a practicing psychologist currently doing my master's in clinical psychology. I'm a brief psychotherapist, certified graphologist, and a mental health advocate. That's a lot. Okay, so before we start with the true potential, can you tell me what hierarchy of needs means and how is it related to the concept of self-actualization? Okay. So, as you already told, that there are very few fields of psychology that focus on the true potential of a human being. So, Hmm. I'll shed light on that field of psychology that is specifically humanistic psychology. So, there are a few humanistic theorists in the past. One of them is Abraham Maslow, and Abraham Maslow introduced the hierarchy of needs. So, it's basically this theory or the hierarchy of need. It suggests that human have the series of needs that Hmm. must be met in a specific order. Um, Starting from lower point or lower level need, when they get satisfied, human move to the higher level needs, and ultimately it lead to the most ultimate destination, that is self actualization or the full potential of human being. Hmm. If we break down this Maslow's hierarchy of need, it starts from the basic bottom need. Those are the physiological need. It include the food, water, sleep, breathing, something जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, and physiological basic need. Then Hmm. the second step is the safety need, Hmm. where the person seek the safety, the security from the environment. It can be the personal security, it can be resources, it can be health, property, stable job, health insurance, and security from any perspective. Then the third need is the love and belonging ki need. It when we have the food, water, we slept well, we are breathing, we are healthy, we know we have a house or a space, we know we are secure, our brain and body is secure. Then we move to the third one need, and that is love and belonging. Now we need people with us, we need friends, we need family, we need romantic relationship, we need social connection, community connection. We cannot think of these जब तक हमारे पास health नहीं है, food नहीं है, water. The third one is love and belonging, and then जब हमें दोस्त भी मिल गए, हमें रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी मिल गए, हमें फैमिली भी मिल गई, तो ये क्या चीज लाना शुरू हो जाएगी हमारे अंदर, एक मीनिंग लाना शुरू हो जाएगी हमारी लाइफ में, हैप्पीनेस लाना शुरू हो जाएगी, एंड वी फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. एंड देन वी मूव टू द फोर्थ वन नीड. नाउ हमें कम्युनिटी मिल गई है, अब हमें उस कम्युनिटी में इज्जत चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, हमें चाहिए कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हमारी अचीवमेंट को सराहा जाए, और हमें अप्रिशिएट किया जाए, सेल्फ वर्थ, वैल्यू मिले. फोर्थ एंड देन द लास्ट वन, कि जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किया कि ट्रू पोटेंशियल को हम कनेक्ट करते हैं विद दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, या टॉप ऑफ पायरामिड की इस पॉइंट के साथ, कि एक इंसान अपने 100 पोटेंशियल पे पहुंच जाए. दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मेस्लोज थ्योरी, कि एक इंसान फुली जो है डेवलप कर लेता है, अपनी जात को डिस्कवर कर लेता है, क्रिएटिव हो जाता है, एंड अपना ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट कर लेता है. तो दैट इज द हायरार्की ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मेस्लो. And does every human being have self-actualized themselves? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगेन, हम अगर इसको डिस्कस करें, अकॉर्डिंग टू
अब्राहम मेस्लो, तो उन्होंने कहा था only 2% people in the world can reach at the self actualization. So मैं इसको इस तरह से रिलेट करूंगी कि self actualization, it is not a destination, it's a continuous journey. Yeah, that's a अब्राहम good मेस्लो के point. अब्राहम Yeah. मेस्लो के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देयर आर फ्यू पीपल जो कि उस लोअर नीड, फिर अगली 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 नीड्स को फुलफिल करके उस लेवल के पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं, और अपने सब इनर फियर्स और सोसाइटल प्रेशर को ओवरकम करके वो एक पॉइंट पे पहुंच पाते हैं, मेस्लो ये कहते हैं. Mm. लेकिन ह्यूमन जो है, वो कोई भी इंसान वो ग्रो कर सकता है, वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच सकता है, एटलीस्ट कोशिश कर सकता है. So I'll give an example over here. One of my clients in therapy, let's call her A. So she grew up in a challenging environment and always felt that she is not good enough. Her family never supported her. Her parents were divorced. She married to a man. He was living in a different country, and she was living back home with his family. A lot of societal pressures around her. She never had that confidence that she can take her own decisions. So during therapy, I taught her was finding her inner strengths. During therapy, she started working on self compassion instead of saying to herself that she is not enough and she is not able to do anything. So we focused on doing the humanistic approach, using the humanistic approach and positive psychology. We worked on self-compassion and identifying her strengths. So with time, found out that her strength was creativity and art. Today, she's not a globally known artist, which we usually say the self-fulfillment or self-actualization is, that a person reach at that level of potential that all the world knows that person. So it's not like that, but Mhm. at least she started feeling satisfied with herself. She found fulfillment by Mm. creating art that help herself to connect with herself and others. So she became better, and I would say that person in front of me, she reached at her self-actualization. So it's different for everybody. It's subjective. Mm. Right. So you use the term positive psychology. Could you be more elaborate about that? So positive psychology, as we started the podcast with the term that all the fields of psychology, you really focus on the clinical perspective, the abnormal traits in a human being, disorders, anxiety, depression, obsessive compulsive disorder, trauma, and Mhm. whatnot. But the positive psychology is that one branch of psychology that I truly love, and it really focus on study and promotion of positive emotions. What are positive emotions, what are the strength, and what are the factors that contribute to the fulfillment of a human being. And instead of just focusing on mental illness, it focus on happiness, it focus on personal growth, and it says that if a person is having a lot of negative things around him or her, नेगेटिविटी है, एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी अपनी जात जो है वो शैटर्ड है, और वो अपनी सेल्फ से डिस्टर्ब्ड है, बहुत सारी चीजें हैं. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दोज थिंग्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी ये करती है, वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स. वी स्टार्ट फाइंडिंग Mhm. कि इस बंदे का अच्छा 1 2 3 4 ये स्ट्रेंथ्स है, बाकी सारी दुनिया नेगेटिव है. सो वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन 1 2 3 4 दोज थिंग्स एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग देम, स्टार्ट एम्पावरिंग देम. जब हम उनको एम्पावर करते हैं तो पूरी बाकी सब नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है. सो दिस Mhm. इज द पावर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. Well, there are some myths that positive psychology means being happy all the time, and it has been compared to toxic positivity. So, can you break that myth? Myths regarding positive psychology? No, we cannot. We are human beings. We cannot stay positive all the time.
Mm-hmm. And positive psychology doesn't mean always being happy or constant happiness. ये ऐसी कोई चीज नहीं होती है. Mm-hmm. इट रियली सजेस्ट कि हमें पॉजिटिव पे फोकस करना है, पॉजिटिव इमोशन पे, और इग्नोर करना है नेगेटिव इमोशन को. ये एम्फसाइज करती है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड मैनेजिंग द फुल रेंज ऑफ इमोशंस. Mm-hmm. हमारे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, बट देयर इज अ हेल्दी वे टू रेगुलेट दैट इमोशन एज वेल. आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की लाइफ में कोई लॉस आ गया, लॉस ऑफ अ लव्ड वन भी हो सकता है, लॉस ऑफ अ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. फीलिंग सैड इज वेरी नेचुरल. अगर मैं कहूँ Yeah. कि एक बंदे का फैमिली में डेथ हो गई है, या उसकी जो उसकी बेस्ट ड्रीम जॉब थी चली गई है, तो वो सैड नहीं होगा. ही हैज टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. तो ऐसे नहीं है. फीलिंग सैड ओवर अ लॉस इज वेरी नेचुरल. इन पॉजिटिव साइकोलॉजी इनकरेज फाइंडिंग द मीनिंग एंड ग्रोथ थ्रू Mm-hmm. सच एक्सपीरियंसेस. और उनको सप्रेस नहीं करना है, उन्हें उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है, और उनके साथ अपनी लाइफ को लेकर चलना है, और उनको रेगुलेट होने देना. Right. So instead of like in CBT, you are required to change your thinking, right? So how is it any different in positive psychology if you are required to use a gratitude journal and use affirmations? So what's the difference between them? Okay, the cognitive behavioral therapy, we need to focus on the framework of therapy before applying Mm-hmm. it or using it. We see कि कौन से क्लाइंट पे किस चीज की जरूरत है. Either the person need the focus on the strengths, या उसकी जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं वो इतनी ज्यादा है कि वो अपने किसी काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, वो एक लूप होल में फंसा हुआ है. तो फिर हम फोकस पहले करेंगे कि हम उसकी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, जिनको हम आंट्स भी कहते हैं. हैव यू एवर सीन बहुत सारी आंट्स एकदम से एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इनको यहाँ से कैसे रिमूव करें. तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स इसी तरह से हैं कि वो फिर एकदम से गुच्छा बनकर आ जाती है, एक बंच बनकर आ जाती है, एंड वी आर नॉट एबल टू मैनेज और केटर दैम. सो Mm. आपको पता है हम एक दिन में अपने आप से कितनी बातें करते हैं? बहुत ज्यादा है ना? 24 आवर्स. 24 Yeah. आवर्स आपके पास नहीं है, 24 आवर्स मेरे पास नहीं है, तो आप कितनी बातें करते हैं 24 आवर्स में अपने आप से? एनी आइडिया? 20 hours. 20 आवर्स. ओके, बाकी सोने में गुजरते हैं. ओके, तो 24 आवर्स हर इंसान के पास होते हैं. 24 आवर्स Mm. में एक एवरेज ह्यूमन माइंड जो है वो 70 to 80 थाउजेंड थॉट्स प्रोड्यूस करता है. तो 70 to 80 और 90 ऑन एवरेज ऐसा कहा जाता है कि 70 to 90 थाउजेंड थॉट्स एक इंसान के दिमाग में आती है, जिसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होती है. So Mm. it's of no control. It's very natural that negative thoughts are automatic and positive Mm. thoughts require effort. So Yeah. ये डिफरेंस हम किसी को सिखा देते हैं, क्लाइंट्स को भी, कि नेगेटिव थॉट्स तो आती रहेंगी, बट यू नीड अ फिल्टर. जस्ट लाइक हम चाय पीते हैं, हम कॉफी पीते हैं, वी यूज अ स्टेनर टू स्टेन दैट कॉफी या फिर चाय जो है Mm. उसको स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं. इसी तरह से थॉट्स तो बहुत सारी आती रहेंगी. You are the one who is going to decide कि is it worthy, should I invest Mm. my time and energy over it or not. So अगर आपको लगता है कि वो वाली थॉट इतनी लॉजिकल रैशनल जरूरत की है, तो फोकस ऑन इट, अदरवाइज लेट इट पास. Mm. क्योंकि 80 to 90 थाउजेंड थॉट्स आनी है, वो आती जाएंगी. यू नीड टू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायर्ड वंस और Mhm. पॉजिटिव वंस ओनली, और Yeah. नेगेटिव्स को आपने पास होते जाने देना है. सो Mm. ऑन द अदर हैंड, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात है कि हम उनको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करना सिखाते हैं और उनको पॉजिटिव में चेंज करना सिखाती है. जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम बात ही ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, हम बात ही माइंडफुलनेस पे कर रहे हैं, बात ही पॉजिटिव. नेगेटिव को उन्होंने एक साइड पे कर दिया. नेगेटिव को रेगुलेट करने के लिए हम ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करें. वो हर चीज, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम अ सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट एज वेल. सो Mm. ग्राफोलॉजी का ये मतलब है कि एनीथिंग दैट इज इन माई माइंड कैन बी ऑन पेपर और उसका एक मीनिंग है. फॉर Mhm. एग्जाम्पल योर नेम आकर्ष, आप आकर्ष जैसे वर्ड लिखते हैं, इसका एक मीनिंग है. Mhm. द वे यू राइट ए, द वे आई राइट ए इज डिफरेंट, Mhm. एंड दैट इज बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी अलग है और मेरी पर्सनैलिटी अलग है. Mhm. और ये मैं क्लाइंट्स को मैं सिखाती भी हूँ ये बात कि लिखना बहुत जरूरी है अपनी थॉट्स को.
रोजाना लिखें, वीकली लिखें, मंथली लिखें, लेकिन लिखें जो आपको लगता है ऐसी चीज। छोटा सा एक रूल है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है पॉकेट में रखो, जो नहीं अच्छी लगती है डस्टबिन में डाल दो। सो ये छोटा सा रूल आई टीच टू पीपल एज वेल, कि आप लिखें अपनी थॉट्स को। अगर आपको लगता है वो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हैं, उनको एक सेपरेट पेपर पे लिख लें। बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें जो लोगों ने आपको कही हैं, आपके एनवायरनमेंट से आपके पास आई हैं, आपके अपने दिमाग से आपके पास आई हैं, उनको पेपर पे लिखते जाए लिखते जाए। और जब आपके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, यू सी कि इन सबको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, और ये सब मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ हम्म। वैल्यू नहीं ऐड कर रही है, तो जस्ट टीयर दैट पेपर, उसको जला दे या उसको डस्टबिन में डाल दे। सो ये वाली चीज है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से क्या होता है? हाँ, ग्रैटिट्यूड भी नहीं है सिर्फ अकेला, अगर हम जर्नलिंग कहें तो आप रोजाना अगर लिखना शुरू हो जाएं कि अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, मैंने आज क्या अच्छा खाया, मैंने क्या अच्छा फील किया, मेरी किसके साथ अच्छे से बात हुई और मुझे मजा आया। तो जब आपके पास 1 महीने का रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा, 6 महीने का रिकॉर्ड होगा, देर आर डेज, गुड एंड बैड डेज आकर्ष, वी अंडरस्टैंड दैट हम हर दिन अपना बेस्ट फील नहीं कर रहे होते। सो द डे जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वी कैन ओपन दैट डायरी एंड वी कैन फील दोबारा से उन सब चीजों को हम गो थ्रू कर सकते हैं। इफ आई आस्क यू, या किसी से भी हम पूछते हैं कि आपके साथ जिंदगी में बुरा क्या हुआ, पीपल हैव अ लिस्ट, यार ये भी बुरा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बस कहानियां। लाइक इस साल में आई टेल यू अ स्टोरी। देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन, उन्होंने मुझे बताया द फर्स्ट डे व्हेन शी केम टू थेरेपी, she just came, instead of telling her name or asking my name, she started saying मेरे साथ 19 इतने में ऐसा हुआ, 2000 में ऐसा हुआ, 2001 में ऐसा हुआ, 2012 तक ऐसा हुआ। तो फिर मैंने कहा अच्छा ब्रेक लगाया थोड़ा सा, वी विल टेक दैट एज वेल। सो अभी आते हैं पॉइंट पे। तो लोग ऐसे लिख कर रखते हैं अपनी नेगेटिव बातें, नेगेटिव इमोशंस, हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं। और वो क्यों याद रहते हैं? बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 80% बातें हमारा दिमाग नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, और नेगेटिव बातों को भी स्टोर करके रखता है, पॉजिटिव पे इतना फोकस नहीं करता। तो अगर हमने अच्छी अच्छी बातें खुद से लिख कर रखी हुई होगी, जर्नलिंग की भी होगी, तो हमें बैड डेज में हमारी हेल्प करेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है लिखने का, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रमोट करती है। इट मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखे तो इट इट वॉज हेल्पफुल फॉर अस टू फील नेगेटिव rather देन पॉजिटिव। अगर हम झाड़ियों के पीछे ये सोचे कि शेर है चाहे हो ना, तो उससे हमारा सर्वाइवल ज्यादा आसान था। तो इज दैट द रीजन व्हाई नेगेटिव थॉट्स आर सो हार्डवायर्ड इनटू द ब्रेन? ऐसा ही है, ऐसा ही है। नेगेटिव, एक और बात कि हमारा ब्रेन जो है वो चाहे ट्रॉमेटिक और नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करता है बिकॉज इट फील्स सेफ। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी वो उसको सेफ लगता है। अनफेमिलियर चीज चाहे वो जितनी भी पॉजिटिव क्यों नहीं है, हमारे ब्रेन को वो अनफेमिलियर है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, न्यूरोप्लास्टिक कनेक्शंस नहीं है सेफ फील करने के, तो फिर वो उसकी तरफ जाता ही नहीं है, पॉजिटिव चीजों की तरफ। So can you tell me what is true potential actually? ओके, ट्रू पोटेंशियल सिंपली मीन्स के अपनी अंदर की कैपेबिलिटीज को, टैलेंट्स को, एबिलिटीज को, स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना। इट्स ऑलवेज देयर, दे आर ऑलवेज देयर, लेकिन आपने उनको फाइंड आउट करना है ताकि आप एक फुलफिलिंग लाइफ गुजार सके। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर गुड एट, what excites you, and Mhm. what gives your life a meaning। हर इंसान की लाइफ का मीनिंग डिफरेंट है, वी हैव टू फाइंड दैट मीनिंग, इट्स ऑन अस। सो think of it like this. I'll quote an example, a scenario over here. Imagine you have a seed. Mhm. It has that potential to become big, beautiful tree. A small seed, it has that potential, right? But if it never get that sunlight, that water, or the right soil, it may stay small or never grow at all. So you are that seed. Everyone Yes. is a seed. You have that potential inside you, Right. but you need the right mindset, right environment, and right effort to make it flourish or become that big, beautiful tree. So, for example, if I Mhm. say that there's a child who loves storytelling, जिसको बोलना बहुत पसंद है या लिखना बहुत पसंद है, कहानियां लिखना बहुत पसंद है, but he always
लिसन फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम पेरेंट्स, सबसे वो ये सुनता है कि राइटिंग वॉन्ट गेट यू अ जॉब, ये भी कोई काम है करने का। हम्म, विद टाइम वो बच्चा क्या करेगा, वो छोड़ देगा लिखना। वो अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर पाएगा, और शायद उसको कह दिया जाए कि यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड फोकस ऑन स्टडिंग द बायोलॉजी एंड स्टफ एनाटॉमी और वगैरह वगैरह, कर वो भी लेगा, लेकिन उसका वो पोटेंशियल नहीं था, उसका माइंडसेट किसी और चीज में वो बेटर हम्म, वर्क कर सकता था। अगर उसको एक्सप्लोर करने दिया जाए तो शायद हो सकता था वो एक बड़ा अच्छा ऑथर बन सके। अगर उसको इनकरेज किया जाता तो दे माइट ग्रो अप टू राइट बेस्ट सेलिंग बुक्स। So that seed require right mindset, right environment, right effort. तो अगर उसको वो दी जाए तो एक इंसान अपने राइट ट्रू पोटेंशियल पे पहुंच पहुंच सकता So if there are people in the audience who would like to know how to self-actualize themselves and reach their true potential, what advice would you give them? है। What advice I give to them? Yeah. ओके, इसमें एक और चीज आ जाती है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने आप को, उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को और अपने बिहेवियर्स को। हमें ये देखना पड़ेगा हम किस चीज में अच्छे हैं, हम किस चीज में स्ट्रगल करते हैं, और किस तरह से हम अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस बना सकते हैं। एक मजे की बात बताती हूँ। डॉक्टर डॉक्टर ताशा यूरिच, उन्होंने 2018 में एक स्टडी की थी कि Mm-hmm. 95% पीपल थिंक दैट दे आर सेल्फ अवेयर। 95% लोगों को लगता है कि वो सेल्फ अवेयर है, जबकि 10 to 15% पीपल एक्चुअली आर। सो दैट इज अ बिग गैप। यानी सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं ज्यूम कर ले, मुझे पता है मैं क्या हमने ये बहुत एक चीज बनाई हुई है कि हाँ मुझे पता है। व्हेन समबडी स्टार्ट कमिंग एंड सेइंग कि अच्छा, कोई फीडबैक देने की कोशिश करता है हमें, कोई ऑनेस्ट, ना तो हम अपनी जात के साथ ऑनेस्ट होते हैं और ना हम किसी और को ऑनेस्ट होने देते हैं, बाउंड्री बिल्ड कर लेते हैं ना। तो इस वजह से ये गैप आता है। वी नीड टू Mm-hmm. अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेंथ्स एंड आवर वीकनेसेस सबसे पहले। तो इसके लिए मैं चार चीजें बोलूंगी बट अ पर्सन कैन डू। आपको चार चीजें, चार क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। वट एम आई गुड एट, मैं किस चीज में अच्छा हूँ। वेयर डू आई स्ट्रगल, कौन सी चीज जो है मुझे परेशान करती है, जिसमें मैं फंस जाता हूँ, वीकनेस हो सकती है वगैरह वगैरह। Mm-hmm. नंबर 3, वट एनर्जाइज मी, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे एक्साइट करती है। नंबर 4, वट होल्ड मी बैक, क्या ऐसी थ्रेड्स है मेरी लाइफ में, या क्या ऐसे चीजें, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, अवेलेबिलिटी चीजों की हो सकती है, वगैरह वगैरह, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। Mm-hmm. कौन सी चीज मुझे होल्ड बैक करती है। जब चार चीजों के आप जवाब ढूंढेंगे ना तो फिर आप सेल्फ अवेयर होंगे। जितना ज्यादा आप सेल्फ अवेयर होंगे उतना ज्यादा आप अपने ट्रू पोटेंशियल अचीव करने के करीब पहुंच जाएंगे। Right. Right. And if anyone wants to contact you and take your services as a psychologist, how can they connect with you? Okay, they can connect with me on Instagram. My Instagram handle is healing with Laiba, HEALINGWITHLAIBA, healing with Laiba. They can connect with me over there and book an appointment. Well, Laiba, it was a very educational session, and it has been a tremendous honor to have you on the platform. Same I here. wish you all the best.